Assalamualaikum students, how are you? I hope you are fine and doing great at your homes. So this is your lecture number 2 of holidays homework. I hope you have already solved a few pages of your holidays homework of science जो हमने last video में discuss किए थे about that gear puzzle and a few questions from fill in the blanks and MCQs such questions. So you have already solved those, right? So now we are going towards the other questions that you have to solve on your holidays homework booklet in the section of science. So first page is of short answers. You have to write the short answers of these questions, right? So as you know that we have these questions from chapter number 2 and chapter number 3 of your science book. So let's see कि कौन सा क्वेश्चन आपके किस चैप्टर में से है. लेट्स गेट सम हिंट्स फ्रॉम इट एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट ऑन योर ओन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ pollinators. So you have studied about pollinators in which chapter? I think you know about it. You have studied about it in chapter number 3, the pollination, fertilization in plants. आपने उस चैप्टर में पढ़ा था इसके बारे में. So you have to write the names of a few pollinators. First of all, define pollinators and then write their names. Second question is what are stamens? So you have studied about it in the same chapter, chapter number 3, reproduction in plants. एंड व्हाट आर स्टेमन्स ये आपको मिल जाएगा बहुत ईजीली जब आप उसको सर्च करेंगे, जब आप अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे बहुत ईजीली यू विल गेट टू नो अबाउट इट. देन थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीजनेटेड ब्लड? दिस question belongs to chapter 2, transport. So you have to find what is oxygenated blood. This is the same question that you have already solved in your homeworks and the lectures that you were getting before the school. तो उसके अंदर आपने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीजनेटेड ब्लड. हाउ कैन यू अवॉइड हार्ट डिजीजेज? इसके अंदर आपने लिखनी है प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक. इसके अंदर से आपके पास हाउ कैन यू अवॉइड हार्ट डिजीजेज, एग्जैक्ट इसी तरह से आपके पास एक कॉलम है, एक कलर्ड बॉक्स है, ब्लू और ऑरेंज कलर्ड बॉक्स. तो उसमें से आपने इसके अंदर उसके सारे अवॉइड करने के जो तरीके हैं, जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, हमने वो लिखनी है. Next question is what is transpiration? Transpiration, write the definition of transpiration in front of this picture here. And last question of this page is differentiate between self and cross pollination. You have to write the difference. Just write the definition. You are not supposed to give example. Just define, because इतनी space नहीं है आपके पास कि आप वहाँ पर उसकी examples पे लिखना शुरू कर दें. If you have written the example then it's okay. गलत बात नहीं है और बिल्कुल भी गलत काम नहीं किया आपने कि आपको नहीं लिखनी चाहिए थी या आपको इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपने लिख दिया है इट्स ओके, वेरी गुड. लेकिन अगर आपने नहीं लिखा तब भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई नो दैट देयर इज़ अ लिटिल स्पेस. इतनी इनफ स्पेस नहीं है हमारे पास कि हम उसके अंदर एग्जाम्पल्स के साथ उसको कोट करें. तो इफ़ यू जस्ट राइट द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन देन इट वुड बी ओके, right? So on the next page we have question like what do you know about pressure flow hypothesis? So pressure flow hypothesis इस तरह की इस डायग्राम के साथ आपके पास आपकी बुक पर मेंशन है, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस इन द पिंक बॉक्स. तो आपने वहाँ से उसकी पूरी डेफिनेशन, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस क्या होता है, किस तरह से जाइलम के साथ फ्लोएम में से सारी फूड और मटेरियल, सारे वेस्ट मटेरियल्स भी सब कुछ मूव कैसे कर रहे होते हैं विद द प्रेशर ऑफ जाइलम, विद द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द जाइलम ड्यू टू वाटर. तो उसके साथ साथ हमने जिस तरह से मूवमेंट हो रही होती है हमने उस चीज़ को इसके अंदर एक्सप्लेन कर देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज पॉलिनेशन कैरिड आउट बाय एनिमल्स? सो यू आर गोइंग टू फाइंड अबाउट इट्स आंसर इन द पॉलिनेशन बाय एनिमल्स. ये टॉपिक है आपका, उसके अंदर आपको बहुत इजीली इसका आंसर मिल जाएगा. Ninth question, name two plants which are used as medicines. If you are intelligent enough then you will get a clue from these two pictures. इसके अंदर से आपको फॉरन से clue मिल जाएगा which two plants are used as medicine. Although a lot of plants, we have a variety of plants which are used as medicines. बहुत सारे plants pharmaceutical industries में आपको पता है कि हम हर्ब्स में से मेडिसिन बना रहे हैं. एलोपैथिक मेडिसिन भी बन रही हैं हमारे पास. होम्योपैथी तो बहुत सारी पूरी बेस ही हर्ब्स के ऊपर कर रही है. जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनके अंदर से बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं, उनके थ्रू फिर इलाज किया जाता है, मेडिसिन बनाई जाती हैं. So you have to write just two examples. You can write these two names from your book or you can even write on your own. आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं. या if you have information about any other plant which gives us medicines, which provide us with medicines, yeah, you know that that is a medicinal plant, so you can write the name there as well. Last question, list down two changes that occur in plant after fertilization.
अच्छा, तो दिस इज़ आई थिंक अ क्वाइट ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़े से बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही है इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करते हुए। सो बच्चों, आपने इसको बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना है कि आपके पास बिल्कुल लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स के टॉपिक के बाद आपके पास एक छोटे से पैराग्राफ में चेंजेस अकरिंग इन द प्लांट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इस तरह की हेडिंग है, एंड देयर आर अ फ्यू चेंजेस एंड लिस्टेड इन इट. So you have to write only 2 changes that occur in a plant after fertilization. Okay, so now we are done with short questions and we are moving towards this page, riddles. Oh, this is a very interesting one. So this is not from your book. ये आपके पास कुछ जनरल रिडल्स हैं, कुछ जनरल पहेलियां हैं, साइंटिफिक रिडल्स हम जिनको कहते हैं, साइंटिफिक पहेलियां हैं ये थोड़ी सी, हमें इनको सॉल्व करना है. एंड हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व इट? यू कैन ईदर यूज योर ओन इंफॉर्मेशन, or if you can't find it, if you don't know its answer, then you can find it on Google. आप इसको इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं. First question is, what are the 3 R's that keep our planet clean? अच्छा, before reading all these riddles from this page, मैं आपको एक छोटा सा क्लू दे दूं कि इस पेज के ऊपर जितनी पिक्चर्स हैं इनके अंदर से आपको बहुत सारे क्लूज मिल जाएंगे कुछ रिडल्स के, बहुत सारे. अब मैं वो यहाँ पर आपको हाईलाइट नहीं करूँगी क्योंकि ऐसे तो बहुत इजी हो जाएगा काम, और अभी आप जितने छोटे बच्चे तो नहीं है कि आपको बिल्कुल सारा सारा बताऊंगी मैं, आप तो खुद माशाल्लाह इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, यू कैन डू इट ऑन योर ओन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द 3 R's दैट कीप आवर प्लैनेट क्लीन? अब ये आपने सोचना है कि इफ़ यू हैव read about it in science और social studies, या आपने किस सब्जेक्ट में पढ़ा था इसके बारे में, जनरल नॉलेज में, तो वहाँ से भी आप इसका आंसर इंटरप्रेट करके लिख सकते हो. और इफ़ यू कांट मेमोराइज, इफ़ यू कांट रिकॉल द आंसर, आप क्या करेंगे, आप फ़ौरन से गूगल पर लिखेंगे द 3 R प्रिंसिपल, और यहाँ पर सिर्फ उन 3 R's के नेम्स लिख देंगे पूरे पूरे. ओके. सेकेंड क्वेश्चन इज, विच प्लेनेट इन आवर गैलेक्सी हैज़ द शॉर्टेस्ट ईयर ऑफ देम ऑल? नाउ स्टूडेंट्स बी केयरफुल. आपने सबसे पहले देखना है हाउ डज आवर सोलर सिस्टम लुक लाइक. सोलर सिस्टम कैसा नज़र आता है हमें? हमारा जो सोलर सिस्टम है, दैट इज देयर इज सन इन द मिडल, then first planet, second planet, third planet, these are the orbits that I am drawing, then fourth and fifth and so on, जितने हमारे planets हैं टोटल हमारे पास उतने orbits बन जाते हैं. अच्छा, तो ईयर हमारे पास जो एक साल है वो बनता किस तरह से? हम अपनी अर्थ की एग्जांपल लेते हैं. और अर्थ कंप्लीट्स 1 रोटेशन अराउंड द सन इन 365 डेज. पूरे 365 डेज लगते हैं. थर्ड प्लानट है अर्थ हमारा, तो ये एक पॉइंट से स्टार्ट करके जैसे ही एक पूरा चक्कर कंप्लीट, एक साइकिल कंप्लीट करके वापस उस पॉइंट पर आता है, तो इसको 365 डेज लगते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पूरा एक साल हमारा 365 डेज का होता है ना. तो ये वो 365 डेज हैं जिसके अंदर वो अपना एक पूरा चक्कर, एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर रही है. तो आपने ये देखना है कि कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो सबसे कम टाइम के अंदर अपना एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट कर लेगा. साइकिल कंप्लीट कर लेगा तो इसका मतलब है कि उसका ईयर सबसे छोटा होगा. जितने कम टाइम के अंदर वो अपना साइकिल कंप्लीट करेगा उसका ईयर उतना छोटा होगा. सो यू हैव टू सोल्व इट. Now, next question is, many people have heard about this, but nobody has ever seen it. It will never speak back until you speak to it. What is it? कि बहुत सारे लोगों ने, बल्कि अक्सर ज़्यादातर लोगों ने इसके बारे में सुना तो है, और इसको भी सुना है, लेकिन इसको कभी भी किसी ने देखा नहीं है. और जब तक हम ना बोलें तब तक ये हमारी बात का जवाब नहीं देती है, ये भी नहीं बोलती. अब ये क्या चीज़ है? दिस इज़ इंटरेस्टिंग वन. थोड़ी सी आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, आपने फ़ौरन से सोचना है इसके बारे में, ऐसी कौन सी चीज़ है कि जब तक हम ना बोलें तब तक हमें उसकी आवाज़ नहीं आती. ये हमारी अपनी आवाज़ नहीं है. ऐसा नहीं है कि आपने इसके अंदर अपना आंसर लिख देना है कि आवर वॉइस. कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको सबने सुना है लेकिन देखा किसी ने भी नहीं है, और जब तक हम ना बोलें तब तक हम उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते. ठीक है, तब तक वो भी नहीं बोलेगी. आपने इसको सर्च करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द बिगेस्ट रेप्टाइल ऑन अर्थ? दिस इज़ फ्रॉम साइंस. आपको साइंस में रेप्टाइल्स के बारे में आपने पढ़ा है. स्केली स्किन होती है, दे कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर बोथ, और बहुत सारी एग्जांपल्स भी हमने इसके अंदर पढ़ी हुई हैं. तो अब आपने देखना है कि बिगेस्ट रेप्टाइल ऑन अर्थ कौन है, सबसे बड़ा रेप्टाइल अर्थ के ऊपर कौन सा है. वट इज़ फुल ऑफ होल्स बट कैन होल्ड वाटर? अब कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बहुत सारे होल्स हैं, बहुत सारे सुराख हैं, अनलिमिटेड, लेकिन फिर भी वो अपने अंदर पानी को कंटेन कर सकती है, पानी को एब्जॉर्ब कर सकती है. ठीक है, ये मैंने एक बहुत बड़ा क्लू भी दे दिया आपको. आपने उसको लिखना है. एक 1 वर्ड आंसर भी लिख दोगे, दैट वुड बी इनफ. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट कैन नॉट बी यूज्ड अंटिल इट्स ब्रोकन? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक हम उसको तोड़ ना लें. ये तो बहुत ईजी सा है, आप लोग बहुत ईजीली सॉल्व कर लोगे, बहुत फटाफट इसको सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे बहुत सारे पॉइंट्स इसमें से. इफ स्टिल यू हैव एनी क्वेरीज, सो यू कैन आस्क मी इन योर ग्रुप्स. ओके, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.